Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to discuss this very important problem from exam point of view. और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों है? एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की रीजंस की वजह से और दूसरा द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग इज अ हेटेरोसाइक्लिक. सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो हम देख लेते हैं. सो व्हाट वी हैव हियर इज एन साइक्लिक इनेमीन reacting with the conjugate ketone in presence of HCl ether. ठीक है, to give us this particular compound जिसको हम हाइड्रोक्सिलमिक हाइड्रोक्लोराइड अंडर HCl कंडीशन से ट्रीट करके हम pyridine बना रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है, आई थिंक which is something which I often tell student is to look at the conditions and look at the reaction that is happening. जैसे कि this entire unit is fusing with this conjugated ketone. एक तरह से अगर हम इन स्ट्रक्चर दोनों को कंपेयर करें, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज दिस बॉन्ड व्हिच इज गेटिंग कनेक्टिंग टू दिस कार्बन, this carbon is getting attached to this carbon, so it means there is a conjugate addition of this unit is happening on this one. But reaction condition देखो, reaction condition HCl ether, and here this is the most important condition, dry. From what you have been taught, जो आपको अब तक पढ़ाया जा चुका है, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने बताया कि this is nothing but a protecting group for the aldehyde. So this is the acidic protection for the aldehyde, and this can be easily cleaved under acidic condition. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. And here what we are using is an HCl, जो कि काफी strong acid है. इसको तो आप easily cleave कर सकते हो even in PDS से भी cleave कर सकते हो. So किस तरह से ये पूरे का पूरे रिएक्शन के दौरान how this unit surviving, ये survive क्यों कर रही है, यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेयर दिस डिटेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट मींस जो हम इस रिएक्शन में HCl यूज कर रहे हैं, दिस HCl इज अ गैस, इट इज द ड्राई HCl दैट वी आर यूजिंग. इट मींस once you generate the HCl, it has been passed through either the molecular sheaves or calcium hydride trap, मतलब किसी न किसी ट्रैप से पास किया गया है ताकि you only get the dry HCl. ये इसका पर्पज है. इस पर्टिकुलर पूरे सीक्वेंस में ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, that we are using the dry condition, that is the reason why this acetal cleavage is surviving. ठीक है, ये डिटेल तो हो गई. Now coming back to the next point, जो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, इट इज दिस प्रोडक्ट दैट वी गेट. एंड यहां आप क्लियरली देख सकते हैं देयर इज अ सिस फ्यूजन, मतलब यहां पर फिनाइल और हाइड्रोजन इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है, मतलब दोनों की दोनों जब यूनिट से कंबाइन कर रही है, दे आर कंबाइनिंग इन अ सिस फैशन व्हिच इज इंटरेस्टिंग. तो ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नॉर्मली, और विद द मॉलिक्यूलर मॉडल्स वी आर गोइंग टू सी इसका सिस फ्यूजन क्यों है. और ये केमिस्ट्री ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो जो बनाई है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि हाउ टू सिंथेसाइज pyridines from 1 2 3 4 5 1,5 dicarbonyl compounds. So let's jump into this video and try to understand how this entire reaction sequence is happening, because this is a very important example from exams point of view. So as I said, first step of the reaction is, जैसे कि मैंने बोला दो यूनिट्स हैं, here what we have is an enamine. ठीक है, enamine comes here, so it is this attacks. So this is attack is happening in a conjugate manner. So we can say this is the conjugate addition that is happening in this reaction. पहले स्टेप में, ठीक है. As a result of which this is the intermediate that you get. So what we have is an enol, and under acidic condition this enol can easily tautomerize, right? So this can easily tautomerize. So this one, और उसके बाद क्या होता है, this can, आपका ये वाला हाइड्रोजन है, so it can enolize from both the side, क्योंकि this entire sequence is in the equilibrium which is happening. So उसका ये hydrogen can enolize like that. So once you have this enol compound, what is happening, this enol is attacking the ring in a cis manner. So this attack is happening in the cis manner. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है कि this entire tetrad, या फिर हम बोलते हैं ये जो साइड चेन है, this is just too short to come from the other side. That is the reason why what we get is the both the phenyl and hydrogens are on the same side. ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है, because this is the explanation that is given in the book. The reason for the cis fusion is that the addition of enol onto the ring is happening because this tetrad is just too short to come from the other side. But molecular model से अगर हम इसे देखेंगे तो हम समझ पाएंगे आसानी से. और दूसरी चीज, यहाँ पर when we are saying these phenyl group, they are coming towards us. अगर ये let us suppose हमें
ऐसा दिया होता, अगर हमें ऐसा दिया होता फिनाइल, ठीक है, मिथाइल एंड दिस वन, ये व्हाटएवर, ओके, ये भी परफेक्टली फाइन होता, क्योंकि यहां हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर रहे हैं। एंड व्हेन यू से द रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टार्टिंग मटेरियल में कहीं पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, एंड व्हेन वी डिफाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, हियर दिस आल्सो मींस हिज फ्यूजन एंड दिस आल्सो मींस हिज फ्यूजन, तो दोनों के दोनों एकदम सही हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज कि ये वाला why is it coming out of the plane, why it can't be this one, so this is also perfectly fine, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। Now we are going to understand, we are going to look at the molecular model of this compound, जो कि हमको हेल्प करेगा। So मैंने इसका molecular model पहले से ही मैंने ड्रॉ बना के रखा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। So सबसे पहले तो हम देख लेते हैं what I have is this blue one is nothing but this is the nitrogen, ठीक है, और ब्लू वन के साथ हम देख सकते हैं कि दिस कार्बन इज मिथाइल, आई हैव नॉट एडेड द अदर हाइड्रोजन, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज आई एम ट्रीटिंग एज अ मिथाइल, और ये CH2 आपका ये CH2 हो गया, ये वाला CH2 ये CH2 हो गया, और देन दिस इज द क्वाaternary कार्बन जिसमें से फिनाइल ग्रुप इज अटैच, सो आई एम शोइंग दिस फिनाइल ग्रुप एज येलो, सो वी कैन सी दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड ऑन दिस कार्बन वी हैव दिस हाइड्रोजन। अब ये दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो दूसरा चेन है, दिस इज जस्ट गोइंग बैक, इधर से मैं अगर करके दिखाऊं तो दिस इज जस्ट गोइंग बैक, पूरा का पूरा चेन, और हमारा दिस इज इट इज दिस कार्बन एंड दिस इज दिस कार्बन, और ये वाले कार्बन के साथ यू कैन सी दैट दिस इज OH, सो दिस रेड इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आप ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड व्हाट वी हैव इज दिस, और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच, एंड ये वाला जो क्रीम कलर्ड एटम है, इसको मैंने पूरा का पूरा ये टेट्राड या साइड चेन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि when this entire chain, this enol is going behind, इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ इनोलाइज होके और इस डबल बॉन्ड का यहाँ अटैक करना काफी इजी है फ्रॉम द बैक, मतलब सिस फ्यूजन इज मच मोर फेवरेबल टू अटैक फ्रॉम द बैक, और जब ये पीछे से बैक अटैक करेगा, सो दिस हाइड्रोजन दिस इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स अस, दैट इज द रीजन व्हाई हियर व्हाट वी हैव इज अ सिस फ्यूजन। अब इस पूरे के पूरे टेट्राहेड का यहां से ऐसे रोटेट करना, ऑल्दो सिंगल बॉन्ड पे रोटेट कर सकता है, बट फॉर इट टू रोटेट एंड कम हियर, ठीक है, आप एक तो स्ट्रेन भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन ग्रुप के साथ फिनाइल ग्रुप इज अ प्रीटी बल्की ग्रुप, तो दूसरी चीज है कि दिस चेन इज वेरी वेरी शॉर्ट टू रीच this particular carbon, so that is the reason why it just stays back and the attack is taking place from the back side in a cis fusion manner, so that is the reason why you have this particular stereochemistry, ठीक है। so I hope ये काफी straight forward रहा होगा। so एक बार आपका ये so once you have this particular compound in hand, so what you have is a deprotonation to give you the ketone, so आपका ये बन चुका है फर्स्ट स्टेप के बाद का कंपाउंड, ठीक है। Now what we are doing, now we are treating it with the ammonium hydroxylamine in presence of HCl, so they can and ethanol। अब हमारा क्या हो रहा है कि जब आप हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्लोराइड से हाइड्रोक्सिलामीन से ट्रीट कर रहे हैं, so what we are forming is an oxime, so first step is the formation of oxime। यहां पर भी इन्होंने HCl और ethanol में कहीं पर भी कुछ भी ड्राई मेंशन नहीं किया गया है, so it means here what they are using is concentrated HCl यूज कर रहे होंगे, which is 37% HCl, जिसके अंदर हमारा वाटर भी है। Here what we are using is that now we are using is this HCl, so इसका मतलब now this acetyl moiety can be hydrolyzed। अब आपका क्या है, पहले ऑक्साइन बना, उसके बाद आपका एसिटल मोइटी का क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, एसिटल मोइटी का एसिटल डीप्रोटेक्शन, सो दिस इज एसिटल डीप्रोटेक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन to give you this particular aldehyde, और जैसे ही आपका aldehyde बना, what happens, this oxime, this attacks, it results in the formation of this particular compound, और आपका जब ये compound बना, so what will happen, ठीक है, to give you this particular compound, यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि water is getting eliminated out of the system to give you this intermediate, और we are already using the acidic condition, ठीक है, so this is getting protonated होने के बाद, but the hydrogen here it shifts, ठीक है, and this bond moves to, in the water is ejected, so here water is also ejected to give you the final compound। so this is a very very important example and this is the exact reaction sequence why this reaction is taking place, ठीक है। तो कभी भी हम जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अप्रोच करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस तरह से वो
रिएक्ट कर रहा होगा। हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाई सर्टेन कंडीशंस आर मेंशन्ड द वे दे आर। ठीक है, जस्ट ट्राई टू एक्सपैंड योर माइंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।